Hello, am I audible? Yes, sir. So shall we start? Yeah. Hi, good morning, everyone. Good Sorry, morning, sir. that was just Good a morning, technical sir. glitch. Sure. So I won't waste much of your time. Just start with what we're here to do. I'll give you a little brief about myself. Can you guys hear me loud and clear? Yes, sir. I'm Captain Ishan. I've been in the aviation industry for the past 8 years now. I'm a pilot by profession and have flown for Vistara and done multiple flights in my journey. Only in 2021, I joined this company called Sky Air, where we are doing delivery with drones. As you know, drones is a very nascent stage and very new concept for India, but it's going to be the future for sure, 100%. There are multiple applications of drones. I'm here to talk about the logistics part. I'm sure most of you must be interested in, drone delivery, drone space, agriculture, mining, and various other aspects in the drone industry. But logistics is one such industry wherein you can transfer goods from point A to point B in a matter of minutes, where it can take, because of the road infrastructure, the population that we have in India, it takes time to commute by road. We with the use of drones can transfer medicines, can transfer food. I have tied up with various companies like Dunzo, Flipkart, Blue Dart, all the big B's of the e-commerce industry and hyperlocal industry, wherein I'm trying to connect their dark stores, their stores to multiple other locations. So maybe in the coming future, maybe in the coming years, you will be receiving your food through drones, and it's just very exciting to see how the young individuals like yourself are getting promoted and getting really excited by the whole concept of drones. So just to answer the whole topic question, the application in logistics is vast. It can be used in the hilly areas. I'm sure you guys are familiar. Excuse Uh, me, sir. yeah, Sir, sorry for interrupt you, sir. These students are from diploma, so they are not understanding in English. So can you speak in Hindi? can I speak in Hindi? Yes, sir. ओके मेरी हिंदी थोड़ी सी ढीली है, मेरा इंग्लिश बेटर है, बट आई थिंक यू गाइस कैन बीच बीच में मैं हिंदी इंग्लिश करता रहूँगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sure. तो ड्रोन के लिए मेरे लिए बहुत टफ हो गया है हिंदी में आपको समझाना, क्योंकि आई एम मोर फ्लुएंट विद इंग्लिश, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से देखो, ड्रोन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इन द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक्स आप लोग लॉजिस्टिक्स मतलब यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना है आपको, पॉइंट ए से पॉइंट बी। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ब्लू डार्ट, फ्लिपकार्ट, ये सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। हम इनको अपना ड्रोन प्रोवाइड करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे इनका काम आसान हो जाता है, और हम ये उनको ऐसी कॉस्ट में देना चाहते हैं जहाँ पे उनको लॉस भी ना हो इन द फ्यूचर। तो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि स्विगी और ये डंजो वगैरह सब आपको, आई एम श्योर आप लोग सब ऑर्डर करते हो स्विगी जोमेटो से। सो ये ड्रोन यूज़ करेंगे जस्ट सो दैट यू गेट इट फास्ट, जस्ट सो दैट आपको जल्दी मिले वो खाना और गर्म मिले। क्योंकि अभी भी आप ऑर्डर करते होंगे, बहुत बार आपको 50 मिनट 1 घंटा वेट करना होता है और खाना ठंडा हो जाता है। आप पैसे भी दे रहे हो, सर्विस भी मांग रहे हो, बट आपको खाना फिर भी ठंडा मिल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। सो ड्रोन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 2 पॉइंट्स को बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है। हमने ऑलरेडी 1500 से ज़्यादा फ्लाइट करी हुई है। हिमाचल जैसे जगह पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह थी जहाँ पे 2.5 घंटे लगते हैं गाड़ी से, हमने वो ड्रोन से 7 मिनट में किए हैं। 7 मिनट्स, 2.5 hours is to 7 minutes. So I would encourage all of you to study about drones and ड्रोन की पढ़ाई करो,
एंड तभी काफ़ी कोर्सेज आ गए अब तो आगे आगे there is some disturbance from Arpan Kansal. Arpan, please close your mic. या आने वाले टाइम में मैं आपको इनकरेज करूँगा कि पढ़ो ड्रोन के बारे में, यही फ्यूचर है। 15 साल के अंदर अंदर आपको फ्लाइंग टैक्सी भी दिखेगी इंडिया में, और ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ। जेटसन्स के बारे में जानते थे आप लोग? जेटसन्स एक कार्टून है जो मेरे टाइम में आता था, और उस टाइम वो लोग फ्लाइंग टैक्सी दिखाते थे, एंड उस टाइम ईयर था 2022 और अभी ईयर है 2022। उन कार्टून में भी उन्होंने दिखाया कि 2022 का वो दिखा रहे हैं। तो you know the era of air taxis future is already here, and आप लोग जो यंग जनरेशन हो, आपको बहुत ही सही से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एप्लीकेशंस पे वापस आता हूँ। ड्रोन एप्लीकेशंस आर वास्ट, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। मैं 20 से 30 इंडस्ट्री आपको बता सकता हूँ जो ड्रोन में यूज हो सकती है, बट लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, एस्टिमेटेड टू बी अबाउट $5.1 ट्रिलियन। $5.1 ट्रिलियन में जीरो इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आने वाले 5 साल में प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि इंडिया को ड्रोन हब बनाएंगे। इंडिया में बहुत बाहर भी ट्रैवल कर चुका हूँ, दुबई में भी देखा है, हर जगह देखा है, बट अभी इंडिया बहुत आगे है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, एंड ये गवर्नमेंट के पुश के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। रिसेंटली मैंने अभी हिमाचल में एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें हम दूर से दूर, जहाँ पे आदमी को पहुंचने में 5-5 दिन लग जाते हैं, और प्लस उसके बाद पहुंचना भी मुश्किल है, मतलब लाहौल स्पीति उससे भी आगे 15,000 फीट AMSL पे पहुंचने में इतना मुश्किल है, बट वो हम ड्रोन से कर रहे हैं। मैंने गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट टाइप किया हुआ है, एंड हिमाचल में कोई भी पेलोड डिलीवरी होगी तो वो हमारे थ्रू होगी। तो ऑल्सो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लेक्चर्स में बोरिंग लगता है सब स्टूडेंट्स को। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको थोड़े टाइम में एक ड्रोन भी दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू हाउ व्हाट ऑल द कंपोनेंट्स आर, एंड उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, मेक इट मोर फन एंड इंटरेक्टिव फॉर यू गाइस। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, मेरे से पूछना है अगर आपको, तो आप लोग भी पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड आप लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके आगे बहुत अभी लाइफ है। ड्रोन्स में आपको डेफिनेटली घुसना चाहिए, डेफिनेटली उसका कोर्स करना चाहिए आगे जाके, एंड क्योंकि इसमें बहुत इंडस्ट्रीज है, इसमें सिर्फ पायलट बनना एक वो नहीं है। जैसे मैं बिजनेस संभालता हूँ, बिजनेस साइड ऑफ द कंपनी संभालता हूँ। आप पायलट बन सकते हो, आप ऑपरेशन में जा सकते हो, आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, आप असेंबलिंग में जा सकते हो, आप UTM में जा सकते हो। आप UTM इज जो इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, वो भी एक इंडस्ट्री है। तो एक इंडस्ट्री की बहुत सारी सब इंडस्ट्रीज होती है, एंड फिर हम लोग उसमें आप लोग के जहाँ जिसका इंटरेस्ट है वो जा सकता है। एंड मैं आपको अभी एक ड्रोन दिखाता हूँ, एंड यार मैं स्क्रीन उल्टा करता हूँ, बताना अगर दिख रहा है कि नहीं आपको। Yes, sir. This is visible. विजिबल? Yes, sir. तो ये आगे आप लोग देख रहे हो, ये मल्टी रोटर है। मल्टी रोटर का ये काम है कि रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास एक eVTOL भी है जो 100 किलोमीटर की स्पीड पे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 100 किलोमीटर कवर करता है। तो गोली के जैसे निकलता है ये, एकदम फास्ट। कोई भी इंसान इतने डिस्टेंस इतने टाइम में नहीं कवर कर सकता। क्यों? क्योंकि रोड में क्या होता है, ट्रैफिक होता है, पुलिस वाले होते हैं, रेड लाइट होता है, हर टाइप की चीज़ें होती है। ऊपर कोई पुलिस वाला नहीं है आपको पकड़ने को, ऊपर कोई टर्निंग नहीं है, सीधा जाना है पॉइंट A टू पॉइंट B। वी कॉल इट क्रो फ्लाइंग।
जैसे क्रो होता है, क्रो फ्लाई करता है वैसे। तो मैंने ये सब अपनी बहुत बहुत पढ़ाई करी है। मैंने 2-3 साल एविएशन में पायलट का कोर्स किया, एंड उसके बाद ही जाके मैं घुस पाया, विस्तारा में ज्वाइन किया, 5 साल वहाँ काम किया, 1200 घंटे हैं मेरे एयरक्राफ्ट पे, और उसके बाद मैं ऑपरेशंस में घुसा, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे। बट लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है मेहनत। उसके बिना कुछ नहीं है। ये मैं मतलब, चाहे आप अंबानी के भी बेटे हो ना, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अंबानी ने इतना एम्पायर करा किया है, तो बिना मेहनत के तो वो बनेगा नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा यार, पढ़ाई करो, मज़े भी करो, बट पढ़ाई भी करो, और मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर कम्युनिटी प्राउड, एंड दैट्स हाउ इट विल गो। मैं और आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताओ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ तो क्वेश्चन होगा किसी को, नहीं? Students, please ask the question. Hello. सब फोन पे लगे हुए हैं। Sir, they join the meeting from phone. Phone. Okay. I thought it's on the screen in the front. Hello. Yeah. Hi, Morning, sir. Parene. Good morning. How can we build our career in drones? See, right now, to do your college, once you're done with your college, you can do a DGCA program. DGCA is the Directorate General of Civil Aviation. इनका 5 दिन का कोर्स है। आप पायलट बन सकते हो। अगर आपको पायलट नहीं बनना है, so there are multiple aviation courses like aviation management, BBA in aviation, BSc in aviation. ये सब multiple courses, online courses है आजकल। तो there are a lot of things that you can learn online, and आज के टाइम पे there are 250 startups in the drone industry जो अभी ऊपर आ रहे हैं। तो you can apply for any job। अगर कोई भी interested है to do an internship, या किसी को ड्रोन में इंटरेस्ट है, they can also apply to the company I'm working in. I will give the email ID to your moderator, and you guys can mail careers@skyair.tech. विजिट करो skyair.com में, देखो हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। मैंने 1 साल में 20 से ज़्यादा कंपनियों के साथ काम स्टार्ट कर चुका हूँ। सो आप लोग को जाना चाहिए, वेबसाइट देखो skyair.tech, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई। एंड फ्रेशर्स भी वेलकम है। आजकल हम इंटर्न्स बहुत हायर कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी नहीं है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं नहीं इस इंडस्ट्री में, तो फ्रेशर्स आर ऑलवेज वेलकम। एंड in terms of applications of drone in the logistics, अभी हमारे पास ड्रोन जो है वो 5 किलो से 10 किलो उठाता है। हम एक ड्रोन पे काम कर रहे हैं जो 200 किलो उठाएगा एक टाइम पे। तो जितने भी ये आप कंटेनर देखते हो, या कोई भी एयरपोर्ट से सामान जाता है, या ये ब्लू डार्ट हो गया, या DHL हो गया, ये जितनी भी कोरियर कंपनी है, DTDC, ये कम कर देंगी ना सब मैन। जब कितना ह्यूमन एरर कम हो जाएगा, जैसे ह्यूमन एरर कम हो जाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जहाँ मशीन आ जाती है वहाँ ह्यूमंस कम हो जाते हैं एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमंस विल लूज द जॉब्स। दे विल हैव द जॉब्स, बट दे विल बी ट्रेन टू यूज दीज सिस्टम्स। ये सिस्टम यूज करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड अपस्केल बोलते हैं हम लोग इसको। हम उनको अपस्केल करेंगे, rather than being bikers and riders, they'll become drone enthusiasts, they'll become drone pilots. So आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ दिखेगा। दिस इज द राइट टाइम। बहुत ही सही टाइम है ये ड्रोन इंडस्ट्री में घुसने का, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट जितना इस इंडस्ट्री के लिए है, उतना मैंने कोई भी कंट्री में अभी तक नहीं देखा है कि गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर से भी मेरा आई हैड द ऑनर टू मीट हिम इन दिस ईयर इन द ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया। उनसे भी मिला हूँ मैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एविएशन मिनिस्टर, सबसे मेरी बातचीत हुई है, एंड सबका यही कहना है कि इंडिया विल बी द ड्रोन हब बाय 2030। सो यू गाइस आर द यंग गन्स, एंड आप लोग का हाथ होना चाहिए अभी, क्योंकि ये जो एज है एक्सप्लोर करने का, काम करने का, दिस इज द बेस्ट एज टू डू इट।
and I think the best time to enter the drone industry. If you guys have more questions, please shoot. Nato, we can also, kind of wrap this up. I think जितना मैं डीपर जाऊंगा उतना आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती जाएगी, जितना मैं टेक्निकल होते जाऊंगा। तो आई विल कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट एंड लेमैन, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक I was just here to kind of motivate you guys to join the drone industry. And please, you guys are the young guns, and you guys have to push yourself. अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है आप लोग को, ताकि लाइफ में आगे बढ़ पाओ, अपने माँ बाप को प्राउड करना है ना सबको। तो या दैट्स द होल जर्नी। Thank you so much, sir. Thank you guys. Take care. Bye bye. Thank you so much, sir. Thank you for joining us. खाना स्टार्ट।